Good morning, students. Today in this lecture we will start the numerical portion of GST. Open DK Goyal book, chapter number 10, GST, back exercise, question number 2, page number 10.22, and read the statement step by step. It is very important to read and understand the statement. Your full solution of this or every numerical will be based upon reading of statement. Pass the journal entries in the books of Devdar and Brothers, Odisha, assuming all the transaction have been entered within the state. Within the state का means है बेटे intra-state, charging CGST and SGST at the rate of 9%. March 4, 2018. Purchase goods for rupees 5 lakh from Sunil Brothers. March 7, goods returned to Sunil Brothers for rupees 20,000. March 10, sold goods to Mehta and Company for rupees 8 lakh. March 12, goods returned by Mehta and Company for rupees 30,000. 20th March, goods withdrawn by proprietor for personal use 10,000. 25 March, goods distributed as free samples rupees 5,000. 26 March, paid advertisement expenses by check rupees 20,000. 31st March, payment made of balance amount. It means input CGST set off against output, input GST set off against output GST. We will start the numerical portion step by step. Right? Read this statement on page number 10.22, back exercise question number 2 once again, so that we will start the solution part on the blackboard for each and every transaction given in the numerical. Now you have to pass these journal entries in the format of journal. In the previous chapter you learned that how to draw the format: date, particulars, ledger folio, amount debit, amount credit. Same format as in journal, because these are also journal entry, but these are with GST, right? Your first transaction, March 4, purchase goods for rupees 5 lakh from Sunil Brother. Purchase goods from Sunil Brother, it means these purchases are on credit. 2018 March 4, purchases account debit to Sunil Brothers account, right? Purchases का payment करोगे, it means input CGST account debit, input SGST account debit, and the rate of CGST and SGST is given 9%. Purchases 5 lakh, 5 lakh का 9%, 45,000, 9 5s are 45. Input CGST 45,000, input SGST 45,000. 5 lakh 45,000, 5 lakh 90,000. To Sunil's Brothers account, 5 lakh 90,000. Spotted with narration, purchase from Sunil Brothers. Now come on, the line of demarcation will be there. Then March 7, goods returned to Sunil Brother 20,000. अब आपकी परचेजेस जो थी वो क्रेडिट होगी टू परचेज रिटर्न. अगर परचेजेस क्रेडिट हुई है टू परचेज रिटर्न से, तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी के बेटे क्रेडिट होगा. सुनील ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, ही इज द रिसीवर. टू परचेज रिटर्न कितने की थी बच्चे? 20,000. 20,000 पे 9%, 1800, 1800. 20,000 3600. सुनील ब्रदर 23,600. टू परचेजेस 20,000. टू इनपुट CGST 1800, टू इनपुट SGST 1800. स्पॉटेड विद द नरेशन. मैंने नरेशन बार बार नहीं लिखी बेटे. सिंपल जो आपकी ट्रांजैक्शन है दैट विल कम हियर इन नरेशन. व्हाट माय पॉइंट? March 10, sold good to Mehta and Company. Again credit sale. Who is the receiver? Mehta and Company. Mehta and Company's account debit to sales account.
सेल्स पे बेटे जीएसटी कलेक्टेड होता है, और कलेक्टेड मीन्स आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। आपकी सेल्स है 8 लाख की, 8 लाख पे 9% 72,000। इट मीन्स मेहता एंड कंपनीज को यू आर सपोज टू पे 9,44,000 spotted with the narration. I hope कि these 3 steps are clear to you for purchases: input debit, purchase return, input credit, sales credit, output CGST, output SGST credited. Till here note down first 3 transaction, then we will discuss 4th transaction. हरिये बच्चे करो इसको। Now बच्चे come on March 12. After sales on March 12, goods returned by Mehta and Company for ₹30,000. Sales return account debit, because sales का credit balance है, sale return का debit. Sales credit हुई थी, output CGST, output SGST credit हुए थे. Sale return debit है, output CGST debit, output SGST debit to Mehta and Company. Sale return है आपकी 30,000. 30,000 पे 9%, 2,700. To Mehta and Company 35,400. Now March 20, goods withdrawn by proprietor for personal use. जब कोई भी प्रोप्राइटर और ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करता है, दैट इज ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स। और गुड्स विड्रॉ हुई हैं तो इट मींस आपकी परचेसेस रिड्यूस हुई है। जब परचेसेस इंक्रीज होती है तो डेबिट बैलेंस, रिड्यूस होती है तो क्रेडिट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, परचेसेस क्रेडिट है तो बेटे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी भी क्रेडिट होगा। आपकी 10,000 की परचेसेस हैं, राइट? 10,000 के ऊपर 9%, 900, ड्रॉइंग्स 11,800। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने फॉर्मेट नहीं लिया बेटे ड्यू टू द स्पेस, आप लेकिन हर जर्नल एंट्री को फॉर्मेट में ही पास ऑन करोगे, राइट? नेक्स्ट 25 मार्च, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। नाउ अगेन परचेजेस रिड्यूस होंगे क्योंकि आप अपने गुड्स को एज ए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस। फ्री सैंपल्स और यू कैन राइट एडवर्टाइजमेंट एनीवे। फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 50,000 है, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, परचेजेस क्रेडिट है तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी बच्चे क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। 5,000, 450, 450, 5,900। फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट 5,900। तो ये आपने 12 मार्च, 20 मार्च एंड 25 मार्च की जर्नल एंट्री भी डिस्कस कर ली। नोट डाउन दिस 3 जर्नल एंट्री सो दैट वी विल स्टार्ट फॉर मार्च 26। हरिये बच्चे now March 26 paid advertisement expenses by check, advertisement account debit to bank account। अब आप पेमेंट कर रहे हो तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। 20,000 पे 9%, 1,800, 23,600। देन मार्च 31 पेमेंट मेड द बैलेंस अमाउंट। For balance amount that is set off input GST against output GST। अब सेट ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे? एक टेबल ड्रॉ करेंगे बेटा। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। अब ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी की बेटे नेचर होती है डेबिट। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में दोनों 45,000 डेबिट है। जो चीज इनपुट क्रेडिट होगी उसको डेबिट में से माइनस कर दो। Got my point? सेकेंड में 1,800 क्रेडिट है तो माइनस कर दिया। थर्ड है आपका आउटपुट सीजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी की नेचर होती है, देखो इनपुट जो होता है उसकी नेचर डेबिट होती है, आउटपुट की क्रेडिट, राइट? अगर इनपुट क्रेडिट होगा तो वो क्या हो जाएगा? अगर इनपुट क्रेडिट होगा तो वो माइनस हो जाएगा। अगर आउटपुट डेबिट होगा तो वो क्या होगा? माइनस होगा। अब एक एक ट्रांजैक्शन लेंगे। फर्स्ट पे इनपुट डेबिट था तो प्लस, राइट? इनपुट डेबिट है तो प्लस 45,000, 45,000। सेकेंड ट्रांजैक्शन पे इनपुट क्रेडिट था 1,800 माइनस।
थर्ड ट्रांजैक्शन में आउटपुट क्रेडिट था प्लस, फोर्थ ट्रांजैक्शन में आउटपुट डेबिट था माइनस, फिफ्थ ट्रांजैक्शन पे इनपुट क्रेडिट माइनस, सिक्स ट्रांजैक्शन पे इनपुट क्रेडिट माइनस, सेवंथ ट्रांजैक्शन पे इनपुट डेबिट डेबिट प्लस। इनपुट डेबिट होते तो प्लस, क्रेडिट माइनस, इनपुट डेबिट प्लस है तो आउटपुट क्रेडिट प्लस है और डेबिट माइनस। टोटल कर लो बच्चे इनका। अब हमारे पास इनपुट है 43,650, मतलब कि आपने सीजीएसटी इनपुट मतलब पेड किया है 43,650 और सीजीएसटी कलेक्ट किया है 69,300। 69,300 में से 43,650 को पहले सेट ऑफ करो। कैसे सेट ऑफ करोगे, कहाँ से सेट ऑफ करोगे, आउटपुट से या कलेक्टिव से करोगे। आउटपुट सीजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। 43,650, 43,650, 43,650, 43,650। 69,300 में से 43,650 पे कर दिया, बैलेंस बचा 25,650। ये जो बैलेंस है ये इनकम नहीं है बिजनेसमैन की, ये लायबिलिटी है जो जहां कहाँ जाएगी, गवर्नमेंट बैंक अकाउंट में। और जो बैलेंस है आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। व्हाट इज द बैलेंस, 25,650, 25,650 और टोटल 51,300 आप टू बैंक अकाउंट में डाल दोगे। पहले आप अपना टेबल नोट करो, एडवर्टाइजमेंट की एंट्री डालो और इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिट है तो प्लस, क्रेडिट है तो माइनस। इस टेबल को ड्रॉ करो, जो सेट ऑफ की एंट्री है दैट वी विल डिस्कस अगेन। फर्स्ट पहले टेबल यहाँ तक ड्रॉ करो, लास्ट एंट्री पास करो और हर एंट्री का अमाउंट जो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी का इस टैबुलर फॉर्म के अंदर प्लेस करो। हरी अप बच्चे। हाँ जी बेटे, अब इनपुट सीजीएसटी का टोटल है बेटे, इनपुट पेड 43,650, इन आउटपुट सीजीएसटी कलेक्टेड 69,300। तो इनपुट सीजीएसटी पेड विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट सीजीएसटी कलेक्टेड। तो आउटपुट सीजीएसटी 43,650 टू इनपुट सीजीएसटी 43,650। इनपुट की जो ओरिजिनल नेचर है वो है डेबिट, राइट। तो जब हमने इसको सेट ऑफ करना है तो नेचर से ऑपोजिट, कलेक्टेड में से पेड वाला सेट ऑफ करेंगे, कलेक्टेड में से पेड वाला सेट ऑफ। आउटपुट एसजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, जितना हमने पे किया उतना हम कलेक्टेड में से सेट ऑफ कर लेंगे। अब 69,300 में से बेटे 43,650 आपने सेट ऑफ कर दिया, अभी भी स्टिल बैलेंस है फिर 25,650। तो 25,650 इज नॉट एन इनकम ऑफ बिजनेस, दैट इज अ लायबिलिटी। वो लायबिलिटी जो आपने गवर्नमेंट बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाना है। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25,650, 25,650, 51,300 आप गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दोगे। जब आप पूरी ट्रांजैक्शन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो इस न्यूमेरिकल का टोटल आएगा 17,72,900 डेबिट साइड का, 17,72,900 क्रेडिट साइड का टोटल। तो ये क्या किया हमने क्वेश्चन, इंट्रा स्टेट, जब स्टेट के विद इन, मतलब कि पंजाब फॉर एग्जांपल पंजाब स्टेट के विद इन, पटियाला से संगरूर, संगरूर से अमृतसर हम डीलिंग कर रहे हैं बिजनेस की, तो दिस इज इंट्रा स्टेट जहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी की हमने जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड की है। गॉट माय पॉइंट, नोट डाउन दिस सो दैट आफ्टर दिस वी विल डिस्कस इंटर स्टेट। इंटर स्टेट के केस में फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट हम टैक्स को कैसे डील करेंगे। Got my point? हरी अब बच्चा। बेटे now we will start question number 6. Page number 10.24 on your book. Question number 6, page number 10.24 on your book. Past entries in the books of Shri Jagdish Mishra of Lucknow, UP, assuming
CGST 6% and SGST 6%। श्री जगदीश मिश्रा ऑफ लखनऊ यूपी उत्तर प्रदेश के हैं। 2018 मार्च 5 परचेज गुड्स फॉर ₹2,50,000 फ्रॉम वीरेंद्र यादव ऑफ पटना बिहार। यूपी से बिहार बेटे फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट दैट इज इंटर स्टेट। तो अब यहाँ पर CGST और SGST को आप ऐड कर दोगे 6 + 6 12% और IGST चार्ज करोगे। मार्च 12 सोल्ड गुड्स 60,000 एट 50% प्रॉफिट टू प्रताप सिन्हा ऑफ रांची झारखंड। अगेन IGST। परचेज गुड्स 70,000 फ्रॉम रामनाथ ऑफ कानपुर यूपी। यूपी से यूपी है बेटे तो ये इंट्रा स्टेट है, राइट। अगेन से चेक। देन मार्च 18 सोल्ड गुड्स एट वाराणसी यूपी। अगेन बेटा इंट्रा स्टेट है, कॉस्टिंग ₹2,25,000 एट 33:1/3% प्रॉफिट लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% अगेंस्ट चेक विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। पेड रेंट 25,000 बाय चेक, नथिंग इज मेंशन्ड, इट मीन्स दैट दिस इज इंट्रा स्टेट। Next, March 31 payment made of balance of GST. It means that input GST set off against output GST. Question number 6, page number 10.24, back exercise. Now we will start the solution of this numerical on the blackboard. Now we will start the solution. Pass the entries in the books of Shri Jagdish Mishra of Lucknow UP, assuming CGST at the rate of 6% and SGST at the rate of 6%. March 5 purchase goods 2,50,000 from Virendra Yadav of Patna Bihar। UP to Bihar, that is interstate, one state to another state। Purchases account debit to Virendra Yadav's, परचेजेस डेबिट है तो इनपुट IGST अकाउंट, IGST CGST प्लस SGST 6% प्लस 6% 12%। 2,50,000 12% 30,000 टू वीरेंद्र यादव 2,80,000। सेकेंड मार्च 12 सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 एट 50% प्रॉफिट। 60 प्लस 50% प्रॉफिट 60,000 प्लस 50% प्रॉफिट 30,000, that is 90,000 to Pratap Singh of Ranchi Jharkhand from one state to another state। Pratap Singh to sales 90,000, 12% output IGST 10,800, 1,08,000। Third, March 14 purchase goods 70,000 from Ramnath of Kanpur UP against a check। UP to UP है बेटे, it means intra state है। परचेजेस टू बैंक, इनपुट SGST इनपुट CGST 70,000 पे 6% 78,400। मार्च 18 सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹2,25,000। 2,25,000 की गुड्स है बेटे, 33:1/3% प्रॉफिट है, 100/300। 75,000 का प्रॉफिट, ये होगी 3 लाख की सेल। 10% इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है बेटा, 30,000 ट्रेड डिस्काउंट हो गया बच्चे, तो इट मीन्स 2,70,000 की ये सेल हुई है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल 2,70,000। अब ये यूपी टू यूपी है बेटे, CGST SGST लगाओगे टोटल बैंक में जाएगा 3,24,000। नेक्स्ट पेड रेंट बाय चेक 25,000, नथिंग इज मेंशन, इसको हम इंट्रास्टेट लेंगे। रेंट इनपुट CGST इनपुट SGST टू बैंक अकाउंट 25,000 पे 6% 28,000। अब हम करेंगे लास्ट मार्च 31 पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। बेटा देखो कितना IGST पे करना है 30,000, आउटपुट कलेक्ट कितना किया IGST 10,1800, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेड सिर्फ हम इतना ही ले सकते हैं कलेक्टेड IGST से। तो आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST 10,800 10,800। इस 30,000 में से 10,800 तो हमने कर दिया काउंटर बैलेंस सेट ऑफ कर दिया, 19,200 है।
अब उसके आगे हमारे पास है आउटपुट CGST 16,200, इनपुट CGST 4,200 ये पड़ा बच्चे, एंड इनपुट CGST 1,500 ये है बेटी। तो 42 और 1,500 5,700 आउटपुट CGST टू इनपुट CGST। बाकी बचा 10,500, वो दे देंगे हम इनपुट IGST को। ये और कैंसिल हो गया हमारा, ये रह गया 8,700। अब लेती हैं आउटपुट SGST। आउटपुट SGST है 16,200, इनपुट SGST 4,200, इनपुट SGST 1,500, फिर 5,700 इनपुट SGST काउंटर बैलेंस किया, बाकी का IGST 8,700 काउंटर बैलेंस कर दिया। 16,200 में से ये दोनों पे करने के बाद, सेट ऑफ करने के बाद 1,800 बैलेंस स्टिल बचा है। तो वो 1,800 बिजनेसमैन की इनकम नहीं है, वो बैंक अकाउंट, किसके, गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में जाएगा। आई एम टेलिंग यू अगेन, इनपुट IGST है 30,000 और कलेक्ट हुआ 10,800। जितना कलेक्ट हुआ पहले वो सेट ऑफ कर लो, बच गया 19,200। अब आप आउटपुट CGST ले लो पहले, जिसमें से इनपुट CGST बैलेंस कर दो, जितना बच गया वो IGST को सेट ऑफ कर दिया। फिर SGST ले लिया, इनपुट SGST बैलेंस करने के बाद जितना बचा वो IGST उसमें से बैलेंस कर दिया, रेस्ट बैलेंस अमाउंट को गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। जहां पर आपकी इंटर स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट है, वहां पर आप CGST प्लस SGST इज इक्वल टू IGST लेंगे, और जहां आपकी इंट्रा स्टेट है वहां पर बच्चे आप CGST एंड SGST को डील करोगे, राइट। सबसे पहले आप जब सेट ऑफ करते हो तो IGST को सेट ऑफ करोगे, CGST में से CGST सेट ऑफ करने के बाद रेस्ट IGST को, राइट। और ये आपका न्यूमेरिकल है, डिटेल न्यूमेरिकल, हाउ टू पास द जर्नल एंट्री इन द केस ऑफ interstate and intrastate GST. I hope these type of numericals are totally clear to you. If there is any query related to GST chapter, kindly let me know so that I will give you the on-time solution of these problems. Thank you, beta. Note down this numerical. Your chapter is over here. Now you have to practice each and every numerical of DK Goyal book back exercise. I am not giving you any extra worksheet for this chapter. The whatever question, the number of questions are given on the back exercise of DK Goyal, you have to solve each and every numerical of back exercise, right bete? Note down this numerical. Thank you बच्चे।